और सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन टूरिज्म पॉलिसी को लॉन्च करते हैं। वेलकम वंस अगेन एवरीबॉडी। हम सभी यहां पर अभी एकत्रित हुए हैं लॉन्च ऑफ झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021. And today's event, everybody, has been brought to you by the government of Jharkhand in association with the FICCI. And to introduce you to everyone on the dais, let's all welcome with a huge round of applause once again Shri Hemant Soren, Honorable Chief Minister of Jharkhand. We also have Shri Arun Kumar Singh, Development Commissioner, Government of Jharkhand. Shri Rajiv Kumar Eka, Principal Secretary to the Chief Minister. Shri Mastram Meena, Resident Commissioner, Jharkhand. Shri Vinay Kumar Chaube, Secretary to the Chief Minister. Dr. Amitabh Kaushal, Secretary, Department of Tourism, Art, Culture, Sports and Youth Affairs, Government of Jharkhand. Shri Jitendra Kumar Singh, Director, Directorate of Industries, Government of Jharkhand. And Srimati Anjali Yadav, Director, Directorate of Tourism. Let's all welcome them with a huge round of applause once again. And इसी के साथ मैं हमारे मुख्य अतिथि और अतिथि गणों से मैं अब अनुरोध करूंगी कि वो हमारे आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें दीप प्रज्वलन कर with the ceremonial lamp lighting. Let's all inaugurate our today's program and seek the blessings of the Almighty. Thank Him for a new day of learning. We'd also like to extend our heartiest welcome to the Honorable Chief Minister of Jharkhand, Shri Hemant Soren. I will request Dr. Amitabh Kaushal, the Secretary, Department of Tourism, to kindly welcome the Honorable Chief Minister with a plant sapling. Yeah, it's coming. A little gesture to welcome the Honorable Chief Minister, a symbol of growth and prosperity, welcoming the Honorable Chief Guest with the plant sapling. I also request Dr. Kaushal to present a plant to Shri Arun Kumar Singh and welcome him, the Honorable Development Commissioner, Government of Jharkhand, to Shri Rajiv Aruneka, the Principal Secretary to the Chief Minister. I'll also request you to present a plant sapling to Shri Mastram Meena, the Resident Commissioner, Jharkhand, and Shri Vinay Kumar Chaube, Secretary to the Chief Minister. Well, thank you. Without any further ado, let me now request Srimati Anjali Yadav, Director, Tourism, Government of Jharkhand, to kindly give the welcome address. आप सभी को जोहार। On behalf of Department of Tourism, Art, Culture, Sports and Youth Affairs, Government of Jharkhand, it is my privilege to extend a very warm welcome to our Honorable Chief Minister of Jharkhand, Shri Hemant Soren ji, as the Chief Guest on the occasion of launch of Jharkhand Tourism Policy 2021. Our Honorable Chief Minister, in his illustrious political career, has constantly championed the cause of promotion of tourism by highlighting to the world the treasure trove of Jharkhand's exquisite mountains, adventurous forest, boosting of rare and beautiful flora and fauna, unique waterfalls and religious tourism. He has always been a source of inspiration and guidance for us, and he was a pillar of strength and a guide while formulating this policy. We are blessed indeed to have such an inspiring leader amongst us. I'm also very happy to greet our Development Commissioner, Sri Arun Kumar Singh. Exquisite mountains, adventurous forest, boosting of rare and beautiful flora and fauna, unique waterfalls and religious tourism. He has always been a source of inspiration
and guidance for us, and he was a pillar of strength and a guide while formulating this policy. We are blessed indeed to have such an inspiring leader amongst us. I'm also very happy to greet our Development Commissioner, Sri Arun Kumar Singh, Principal Secretary to CM, Sri Rajiv Arunikka, Resident Commissioner, Jharkhand Bhavan, Sri Mastram Meena, Secretary to CM, Sri Vinay Kumar Chaube, Secretary Tourism, Dr. Amitabh Kaushal, Director Industries, Sri Jitendra Kumar. Their brilliance, insight, and encouragement has been a guiding light for all of us in Jharkhand. Without their guidance and leadership, this event would not have been possible at this scale. Thank you so much, sir. I welcome all the delegates who have joined us from the tourism industry, and hopefully this event will make sure that it gives you a new perspective to the divinely beautiful Jharkhand and its pristine beauty which is still untouched. I would like to express आज यहाँ झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021 के लॉन्च के शुभ अवसर पर उपस्थित समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मंच पर उपस्थित विकास आयुक्त श्री अरुण कुमार सिंह जी, मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव सह गृह सचिव झारखंड के श्री राजीव कुमार एक्का सर, मंच पर उपस्थित रेजिडेंट कमिश्नर झारखंड भवन श्री मस्तराम मीना सर, यहाँ पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव सह शहरी विकास सचिव श्री विनय कुमार चौबे सर, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज श्री जितेंद्र कुमार सिंह, डायरेक्टर टूरिज्म श्रीमती अंजलि यादव, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण, फिक्की के सभी पदाधिकारी, सभी मीडिया बंधु भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सबको जानकारी है, आज हम लोग यहाँ पर झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021 के लॉन्च के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। एक बार पुनः मैं आप सबको ग्रीट करना चाहता हूँ और स्टेट की तरफ से सबको जोहार। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है झारखंड में टूरिज्म का पर्सपेक्टिव, और जो पॉलिसी पर्सपेक्टिव है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। झारखंड के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए कई सारे एडवांटेजेस हैं, कुछ आपके सामने रखे गए हैं। पहला है टोपोग्राफी। झारखंड में अंडुलेटिंग टेरेन है, छोटे छोटे हिल्स हैं, फॉरेस्ट कवर है, लगभग 30% हमारा फॉरेस्ट कवर है। इस अंडुलेटिंग टेरेन की वजह से कई सारे डैम्स हैं, जिनकी वजह से कई सारी आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज़ हैं, साथ ही नेचुरल वाटर बॉडीज़ भी हैं। और आपकी जानकारी के लिए गंगा भी झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, साहिबगंज, उसको पास करती है। इसके अलावा आप लोग को जानकारी है, माइंस
माइंस बेस्ड इंडस्ट्रीज काफ़ी हैं। माइंस में कोल माइंस हैं और आयरन ओर माइंस हैं और बाकी भी माइंस हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है, जो मैं आगे इलैबोरेट करूंगा। नेक्स्ट हम लोग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो मैं क्लियर करना चाहूंगा। जैसा कि सबको पता है, टूरिज्म बहुत एम्प्लॉयमेंट सेंसिटिव सेक्टर है। अगर टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट होता है तो उसके एम्प्लॉयमेंट स्पिन ऑफ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी बड़े स्केल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। इन्वेस्टमेंट के साथ ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। जो चौथा पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग चाह रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल स्पेशली एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसा कि अभी मैडम ने आपको बताया होगा, जोहार टर्म इनकैप्सुलेट करता है हमारी फिलॉसफी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, क्योंकि यहां पर ऑलराउंड डेवलपमेंट सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है पूरे इकोसिस्टम के डेवलपमेंट की और सस्टेनेबिलिटी की। तो जितने कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, चाहे वो ऑर्गेनिजम्स हों, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, सब एक दूसरे के साथ सामंजस्य से रहें। इंप्रूवमेंट इन हैप्पीनेस कोशेंट इंपॉर्टेंट है। लोग घूमेंगे फिरेंगे, खुश रहेंगे। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कस्टमर के पॉइंट से उनकी हैप्पीनेस। एंड लास्टली, हमारे आर्ट, कल्चर और हेरिटेज का प्रिजर्वेशन। जैसा कि आपको जानकारी है, कई सारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स बहुत बड़ी संख्या में झारखंड में हैं। हमारे यहाँ स्टेट में प्रिमिटिव ट्राइब्स भी हैं। तो प्रिमिटिव ट्राइब्स और प्रिमिटिव ट्राइब्स की होने की वजह से जो उनकी एंशिएंट लैंग्वेज है, कल्चर है, वो या ट्राइबल कल्चर, वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के थीम पर ही बेस्ड है। तो वो हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आज की अगर थीम देखें तो कॉरपोरेट गवर्नेंस में भी ESG थीम जो है वो काफ़ी डोमिनेंट थीम हो गई है। नेक्स्ट लोकेशन की, मैंने कनेक्टिविटी की बात करी थी। अगर लोकेशन देखें, मैं लोकेशन से इसलिए प्रारंभ कर रहा हूं क्योंकि किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए ऐसा कहा जाता है कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स कोई 3 हैं तो पहला लोकेशन है, दूसरा लोकेशन है, तीसरा लोकेशन है। होटल इंडस्ट्री के लिए स्पेशली ये 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जो बेसिकली एक ही है। झारखंड नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के बीच में ब्रिज की तरीके से है, और इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के बीच में ब्रिज की तरीके से भी है। हमारे स्टेट के बॉर्डर यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लगते हैं। अगर कनेक्टिविटी में देखें तो रेल का बड़ा नेटवर्क है। उसके हिस्टोरिकल रीजंस हैं, क्योंकि मिनरल्स काफ़ी समय से रहे हैं, तो जहां मिनरल्स रहे हैं वहां रेल नेटवर्क इफेक्टिव ब्रिटिशर्स के समय से था। तो रेल कनेक्टिविटी स्पेशली अगर आप देखें तो दिल्ली हावड़ा की जो ग्रैंड कॉर्ड है वो हमारे स्टेट से पास होती है। साथ ही हावड़ा मुंबई लाइन भी हमारे स्टेट से पास होती है। दिल्ली से उड़ीसा का लिंक भी पास होता है, और हावड़ा से साउथ इंडिया का भी जो ट्रेन्स हैं वो पास होती हैं। उसके अलावा तो बहुत सारी ट्रेन्स हैं, मैंने सिर्फ की रूट्स की बात कर रहा हूँ। रोड कनेक्टिविटी देखें तो लगभग 30 नेशनल हाईवेज या उनके सेक्शंस हमारे स्टेट से पास होते हैं, और इंक्लूडिंग ग्रैंड ट्रंक रोड। एरियल कनेक्टिविटी की बात करें, वी हैव रांची एयरपोर्ट, और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसी 12 तारीख को देवघर में एयरपोर्ट भी
इनॉग्रेट किया गया। इसके अलावा रिवर कनेक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताया, गंगा साहिबगंज से पास होती है, पूरे स्टेट से कनेक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि साहिबगंज से पास होती है तो रिवर कनेक्टिविटी भी है। नेक्स्ट अगर टूरिज्म की बात करें तो कई सारे फेसेट्स पे ध्यान जाता है। एक है उसमें से रिलीजियस टूरिज्म। मैंने रिलीजियस टूरिज्म की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट चाहे नेशनल लेवल पे हों, चाहे रीजनल लेवल पे हों और चाहे इंट्रा स्टेट हों, इसके लिए ट्रैवल करते हैं। हम लोग के स्टेट में बहुत सारी साइट्स हैं, सब एन्यूमरेट करना संभव नहीं है। कुछ साइट्स हमने आपके सामने रखी हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर, भगवान शिव का मंदिर है। अभी 12th को माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और यहाँ पे पूजा करी थी। बोकारो में लुगुबुरु ट्राइबल्स के लिए, स्पेशली संथाल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम साइट मानी जाती है और हर साल बहुत बड़े नंबर्स में पूरे कंट्री से आते हैं। गिरिडीह में पारसनाथ है जो जैन कम्युनिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम साइट है। चतरा में एक लोकेशन है इटखोरी, वहाँ पे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों के इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम साइट्स एक ही लोकेशन पर हैं। इसके अलावा रामगढ़ में छिन्नमस्तिका टेम्पल है। एंड अगेन मैं फिर कहना चाहूँगा कि और भी बहुत सारी साइट्स हैं, मैंने सब यहाँ पे नाम नहीं लिया है। दैट डज नॉट मीन कि बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इको टूरिज्म, मैंने शुरुआत में बताया लगभग 30% एरिया हमारा फॉरेस्ट से कवर्ड है। ये कई मायने में स्ट्रेंथ है, कुछ चैलेंजेस भी इसकी वजह से होते हैं डेवलपमेंट में, बट एट द सेम टाइम करंट पर्सपेक्टिव में हम लोग इसको स्ट्रेंथ की तरीके से लेते हैं। स्ट्रेंथ की तरीके से इसलिए लेते हैं क्योंकि पेड़ की उपस्थिति से हमारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और दिल्ली वालों को ये बताने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं कि ऑक्सीजन लेवल कितना इम्पोर्टेंट है, स्पेशली यहाँ हर कमरे में जब लोग इंडिविजुअली एयर प्यूरिफायर लगाते हैं। अगर देखें तो हमारे यहाँ एक नेशनल पार्क है और कई सारी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं। इनको हम लोग लीवरेज करने का प्रयास कर रहे हैं इको टूरिज्म के डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्लाइड। इसी से रिलेटेड जैसे इको टूरिज्म के और भी कंपोनेंट्स हैं अदर देन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, वो है नेचुरल ज्योग्राफी, जैसे नेतरहाट के हिल्स हैं। वेस्ट सिंहभूम में सारंडा के फॉरेस्ट हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेस्ट इन एशिया। उसके अलावा नेचुरल टोपोग्राफी की वजह से, क्योंकि एल्टीट्यूड का डिफरेंस कई स्पॉट पे मिलता है, तो वाटरफॉल्स आते हैं हमारे यहाँ। कई सारे वाटरफॉल्स हैं जिसमें से कुछ आपके सामने रखे गए हैं नाम। वाटरफॉल्स लार्जली क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो रिवर्स हैं वो रेनफेड रिवर्स हैं, तो सीजनैलिटी वाटरफॉल्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट मैंने पूर्व में क्लियर करा था, टोपोग्राफी की वजह से हम लोग के यहाँ कई सारे डैम्स बने। डैम्स की वजह से बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पतरातू है, सरायकेला खरसवां में चांडिल है, धनबाद में मैथन डैम है, दुमका में मासनझोर है जो कि वेस्ट बंगाल से लगता है, कोडरमा में तिलैया है। अगर आप लोग की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, दिस इज़ द लोकेशन जो कि परहैप्स शोले मूवी से झुमरी तिलैया के फॉर्म में नाम में फेमस हुआ है। फिर बोकारो डिस्ट्रिक्ट में तेनूघाट है, रांची में गेतल सूद है, फिर साहिबगंज में गेंजेस में बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट तो रिलीजियस टूरिज्म और इको टूरिज्म, ये तो दो इम्पॉर्टेंट बड़े पिलर्स हैं
लेकिन साथ ही साथ हेरिटेज टूरिज्म भी है हमारे यहाँ। कुछ हिस्टोरिकल साइट्स हैं, कुछ प्री हिस्टोरिकल साइट्स भी हैं, जैसे साहिबगंज में फॉसिल पार्क है, कुछ मेगालिथ्स भी हैं हमारे यहाँ, जैसे चोकाहातू में है, गुमला में है, तो ये प्री हिस्टोरिक हो गया। फिर कुछ हिस्टोरिकल साइट्स हैं, जैसे दुमका में एक ही गांव में बहुत सारे मंदिर हैं, मलूटी में, उसके अलावा राजमहल में जामी मस्जिद है। फिर रांची में एक लोकेशन है मखलूसकीगंज, जहाँ पर फर्स्ट एंग्लो इंडियन सेटलमेंट है, तो वहाँ पर अभी भी वो ब्रिटिशर्स के समय के पुराने जो क्वेंट बंगलोज होते थे वो अभी भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट। अगर कल्चरल टूरिज्म की बात करें तो वैसे कई सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं हमारे यहाँ, लेकिन कुछ फेस्टिवल्स हैं जो कि कम्युनिटी लेवल पे ज़्यादा सेलिब्रेट होते हैं और उसका पब्लिक मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है। जैसे ट्राइबल्स का फेस्टिवल है सरहुल, फेस्टिविटीज़ आपको सड़क पे देखने को मिलेंगी। सेम है दुर्गा पूजा, जो कि सितंबर अक्टूबर में होता है। जैसे जिस तरीके से आपको वेस्ट बंगाल में या कलकत्ता में देखने को मिलती हैं फेस्टिविटीज़, उससे थोड़ा सा छोटे स्केल पर लेकिन उसी प्रकार फेस्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। सिमिलरली मार्च में रामनवमी फेस्टिविटीज़ दिखती हैं। तो ये फेस्टिविटीज़ इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग उस समय ट्रैवल करते हैं, कई लोग अपने घर आते हैं और लोग एक दूसरे से मिलते हैं और सड़क पे सेलिब्रेट करते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट गेट टुगेदर है ये। और जो कल्चरल मैनिफेस्टेशन के अलग फॉर्म्स हैं, जैसे पेंटिंग, सोराई पेंटिंग्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो टसर सिल्क का प्रोडक्शन है। हैंडीक्राफ्ट्स हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ पर भी डिस्प्ले में हैं, मुझे लगता है कुछ आपके फोल्डर्स में भी हैं। फिर डांस के फॉर्म में भी मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है। हम लोग के यहाँ के पाइका और छऊ वर्ल्ड फेमस डांस हैं, वो भी हैं। नेक्स्ट। बिजनेस ट्रैवल स्लाइड थोड़ा प्रेजेंटेशन में बात की तरफ रखी गई है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिजनेस की वजह से बहुत सारे ट्रैवलर्स ट्रैवल कर रहे हैं। ये रूटीन ट्रैवल है, रोज चल रहा है, आपको जानकारी है। कोल, आयरन ओर और यूरेनियम माइनिंग, आप कई लोगों को नहीं जानकारी होगी कि झारखंड में यूरेनियम माइनिंग भी होती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनली पीएसयू जो यूरेनियम माइनिंग करती है, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, झारखंड में ही हेडक्वार्टर्ड है। और यूरेनियम माइनिंग में प्राइवेट सेक्टर परमिटेड नहीं है, एक्सक्लूसिवली फॉर पीएसयू है। उसके अलावा बाकी तो आपको जानकारी है। आयरन ओर माइनिंग है, टाटा स्टील लिमिटेड का है जमशेदपुर में, टाटा मोटर्स है। स्टील अथॉरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट बोकारो स्टील है। फिर हिंडाल्को भी झारखंड में उपस्थित है, ग्रासिम का भी प्लांट है। टाटा मोटर्स और स्टील की वजह से वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर ऑटो एंसिलरीज हैं। इनके अलावा और भी कई सेंट्रल पीएसयूज हैं, एचईसी है, मिकॉन है, और भी हैं। रेलवेज का बड़ा एस्टैब्लिशमेंट है, सारे नहीं गिनाए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट गिनाए हैं। इन सब की वजह से एक रेगुलर बिजनेस ट्रैवल भी होता है जो कि अपने आप में अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट। अब स्ट्रैटेजी टूरिज्म प्रमोशन की क्या है, जिसके बेसिस पर फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स हमने क्लियर करे। स्ट्रैटेजी है बड़े पैमाने पर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, जिसके लिए इंसेंटिव्स की बात आती है, वो मैं आगे बताऊंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द सेंस आपका कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट्स में आपने देखा इन्वेस्टमेंट्स। इसके अलावा रोड पे स्टेट गवर्नमेंट के काफ़ी सीरियस इन्वेस्टमेंट्स, बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं। कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है तो
टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहुंचने में टूरिस्ट को सहूलियत रहती है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट in the form of infrastructure development as well as crowding in the private investment in hospitality। अभी पब्लिक इन्वेस्टमेंट हम लोग के लिमिटेड स्केल पे सही, लेकिन हॉस्पिटैलिटी यूनिट्स पे भी हैं जिनको कि आगे हम लोग विजुलाइज करते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन उसमें होगा। फिर इंफॉर्मेशन डाइसेमिनेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो सारा का सारा डेवलपमेंट इनइक्विटेबल डेवलपमेंट होगा और सस्टेनेबल नहीं होगा। तो हम लोग को बिना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के आगे बढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। हमें सारा मतलब जो हम लोग के डेवलपमेंट होगा वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू ही हम लोग विजुलाइज करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रमोशन एंड ब्रांडिंग। नेक्स्ट फिस्कल इंसेंटिव्स की अब हम बात करना चाहेंगे, जो इस पॉलिसी में हम लोग ने इंट्रोड्यूस किए हैं। जो पहला पॉइंट फीचर है इसका कि सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू ये सारे फिस्कल इंसेंटिव्स रूट होंगे। यहाँ पर डायरेक्टर इंडस्ट्रीज श्री जितेंद्र कुमार सिंह हैं। ये काफ़ी क्लोजली इन्वॉल्व रहे हैं इस इनिशिएटिव को कंसेप्चुअलाइज करने में। ऑलरेडी इंडस्ट्री के लिए जो इंसेंटिव्स का फ्लो है वो सिंगल विंडो के थ्रू है। तो टूरिज्म सेक्टर में टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि आपको मतलब किसी भी इन्वेस्टर को मल्टीपल डिपार्टमेंट्स से इंटरफेस ना करना पड़े और सिंगल विंडो के थ्रू ही ये जितने तरीके के इंसेंटिव्स हैं वो हम लोग रूट कर सकें, और भी इनके अलावा जितने तरीके की प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान हो सके। इंसेंटिव्स के डिटेल्स पॉलिसी बुक में दे रखे हैं, वो उसके कुछ हमने इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स यहाँ पे रखी हैं। पहला है कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, ये 10 करोड़ रुपए तक की होगी, रेंजेस बिटवीन 20 to 25% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट। फिर रीइंबर्समेंट है जीएसटी का, नेट जीएसटी पेड का एट द रेट ऑफ 75% फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। फिर होल्डिंग टैक्स नहीं लिया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का रीइंबर्समेंट है, स्टैम्प ड्यूटी का रीइंबर्समेंट है, कैप्टिव पावर जनरेशन की सब्सिडी है, फिर इंटरेस्ट सब्सिडी है एट द रेट ऑफ 50% अप टू अ लिमिट ऑफ 20 lakhs। और इन विद इन दीज डिफरेंट इंसेंटिव्स स्पेशल प्रोविजंस हैं शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, विमेन, दिव्यांग और एक सर्विसमैन के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, ये सारे इंसेंटिव्स केवल फिस्कल इंसेंटिव्स से ही हम लोग विजुलाइज करते हैं कि सारा टूरिज्म प्रमोशन नहीं होना है। उसके अलावा और भी चीज़ें हम लोग के पाइपलाइन में हैं। फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म इकोनॉमिक जोन की कंसेप्ट है। ये सारे डिटेल्स हम लोग ने पॉलिसी में हैं, उसमें अगर आप देखना चाहेंगे। टूरिज्म इकोनॉमिक जोन्स पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप की कंसेप्ट है, जहाँ पर कि टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी यूनिट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके। फिर टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की कंसेप्ट है, जो कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के लिए कॉन्सेप्चुलाइज है। टूरिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नोडल बॉडी की कंसेप्ट है। हमारे यहाँ ऑलरेडी झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है एग्जिस्टेंस में, उसको स्ट्रेंथन करना है। उसके अलावा टूरिस्ट्स के लिए सिक्योरिटी फोर्स की कंसेप्ट विजुलाइज की गई है, जिससे कि टूरिस्ट्स को हम लोग सिक्योर एनवायरनमेंट दे सकें। तो ये एक समरी है पॉलिसी की, बाकी पॉलिसी के डिटेल्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स मैंने पहले ही कहा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और स्पेशली सस्टेनेबल, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हम लोग के की ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसके थ्रू हम लोग चाह रहे हैं कि टूरिज्म प्रमोशन हो। और यदि आप सबका सहयोग रहा और
बाकी इन्वेस्टर्स का सहयोग रहा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हुआ, तो हम लोग को निश्चित विश्वास है कि हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव में सफल होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।